Hello my students. So today we are moving to the last session of our fifth science chapter, that is materials of daily use. So already we discussed the terms like natural things, man-made things, classification of objects, different classification of objects. What is the advantage of classification? हमने objects को classify क्यों करते हैं so that we can आइडेंटिफाई दैट ऑब्जेक्ट वेरी ईजिली, बहुत आसान से वो ऑब्जेक्ट को हमको ढूंढ सकते हैं. सो दैट्स वाई वी आर क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. ऑलराइट, देन वी स्टडीड डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट वी कैन फाइंड ऑन डिफरेंट मटेरियल्स लाइक फिजिकल स्टेट, appearance, hardness, solubility. So today we are going to learn two new properties, that is density and transparency. Okay, density and transparency. So first let us look what is density. So the density matlab density actually tells us how heavy an object is compared to its size. Okay, how much space an object takes in relation to the amount of matter that is present in that object. Okay, how much space an object take in relation to the amount of matter which is present on that object. It is too different from volume और density, ये दोनों बहुत different है. Density is actually mass per unit volume. Okay, mass per unit volume. Density actually tells us how heavy an object is. Okay, so ये objects का different objects है, इसका सभी डेंसिटी डिफरेंट होते हैं. सारा ऑब्जेक्ट्स का डेंसिटी एक नहीं होता है, सभी का डेंसिटी अलग अलग होता है. ऑलराइट, सो बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी डेंसिटी वी कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू थ्री कैटेगरीज. लेट अस सी. सो इफ यू आर टेकिंग ए स्टोन और ए कॉइन, हमने एक पत्थर ले लिया और एक कॉइन ले लिया एंड वी आर थ्रोइंग इट इनटू द वाटर, हमने पानी में फेंका, देन व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा? इट विल ऑफ कोर्स इट विल सिंक इन द वाटर, वो पानी का नीचे जाएगा. ये क्यों नीचे जाता है? क्योंकि ये मटेरियल का डेंसिटी वाटर डेंसिटी से ज़्यादा होता है, इसलिए वो पानी का नीचे जाता है. ओके, एक स्टोन ले लिया और एक कॉइन और एनी हेवी ऑब्जेक्ट्स इफ यू आर थ्रोइंग इनटू द वाटर इट विल सिंक इनसाइड द वाटर, क्योंकि वो मटेरियल का डेंसिटी पानी से बहुत ज़्यादा होते हैं. पानी से ज़्यादा है तो वो मटेरियल नीचे पानी का नीचे जाएगा. लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट स्टोन और कॉइन इफ यू आर टेकिंग ईजी एग्जाम्पल लाइक लीफ, देखो एक पत्ता ले लिया हमने, एक पत्ता को पानी में डाले तो क्या हो जाएगा? इट विल जस्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी का नीचे नहीं जाएगा. इट विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी का ऊपर पानी का सरफेस में रहेगा. दैट इज़ बिकॉज डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल इट इज़ वेरी लेस कंपेयर टू वाटर. वो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी पानी से कम होता है, इसलिए वो पानी का ऊपर रहते हैं. ओके, देन देर आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट हैव सेम डेंसिटी एज दैट ऑफ वाटर. कुछ ऑब्जेक्ट से उसका डेंसिटी जो वाटर डेंसिटी का ऑलमोस्ट नियर है. ओके, सेम नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, almost near है. So that kind of objects if you are throwing into the water it will just float below the surface of water. Okay, ये पानी का surface का नीचे, just below the surface of water it will float. Okay, so इसका एक example है black rubber, then gum which is styrene butadiene, ये सभी इसका example है. At room temperature we cannot find a lot of examples for this particular condition. Okay, so the last property that we are going to study today, that is transparency. Okay, transparency. So transparency, that is we already learned that in our fourth class. Okay, transparency it is the ability of an object to pass light. so light को pass करने का ऑब्जेक्ट का जो कैपेबिलिटी को और वो प्रॉपर्टी को हमने ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. ओके, transparency it is the ability of an object to pass the light. So based upon this
property based upon transparency, we can classify objects into three types: transparent, translucent, and opaque. Okay, transparent, translucent, and opaque. First of all, let us see what is transparent. Transparent मतलब जो लाइट को completely pass करते हैं, objects which will allow the light to pass through them completely. Completely मतलब क्या, पूरा लाइट को पास करते हैं. That kind of objects are known as transparent objects like glass, water, ये सभी इसका example है. Okay. Then second one is translucent. Translucent मतलब जो ऑब्जेक्ट्स अर्धा लाइट को पास करता है. ओके, जो ऑब्जेक्ट्स अर्धा लाइट को पास करते हैं. द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली मतलब हाफ. ओके, अर्धा लाइट को पास करता है. दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसलसेंट ऑब्जेक्ट्स. लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर एग्जाम्पल लाइक ए मसलिन क्लॉथ और बटर पेपर, ये सभी इसका एग्जाम्पल्स है. एंड द फाइनल वन दैट इज ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास नहीं करते हैं. ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, लाइक वुड देखे तो, पेपर देखे तो, देन मेटल प्लेट, ये सभी इसका एग्जाम्पल है. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ और 5th साइंस चैप्टर मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़. ये चैप्टर बहुत इजी हुआ था. इसमें पहले हमने नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ा गया. नेचुरल थिंग्स मतलब जो पहले से हमारा प्रकृति में होता है. मैन मेड मतलब जो हमने बनाया. देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. जो हमारा चारों तरफ हमने सेवरल ऑब्जेक्ट्स देखता है, इसको हमने क्यों क्लासीफाई करना है, क्यों ग्रुप करना है, अलग अलग ग्रुप में क्यों डालना है, इसके बारे में पढ़ाई किया. सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वेरी ईजिली. ओके, सो दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ क्लासिफिकेशन. देन वी लर्नड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ. ये ऑब्जेक्ट्स हमने हमारा चारों तरफ देखते हैं, ये सभी हमने कैसे बनाता है. We are using several materials like plastic, then wood, metal, ये सभी हमने यूज़ करते हैं हमारा जो चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हमने देखते हैं ये सभी बनने के लिए. then different properties like physical state, appearance, hardness, solubility, density, transparency, ये सभी हमने पढ़ा किया. so according to this properties we can classify that objects. okay, ये properties को बेस करके हमने ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करके अलग अलग ग्रुप में डालते हैं. ऑल राइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर 5th साइंस चैप्टर मटेरियल्स ऑफ डेली यूज. एंड लेट अस वाइंड अप टुडे. थैंक यू एवरीवन.